Hey boys and girls, in this video we are going to cover measurement. This video is meant for JEE मेंस aspirant but कोई भी जो नीट या CBSE 12 के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी ये काम आएगा. Before we start, I'd like you to welcome to our channel. We have started this channel recently, so please feel free to drop any suggestions or comments in the comment section. Okay, so let's head on to the chapter contents. इस चैप्टर में हम लोग 4 सेक्शन देखेंगे. First is quantities, next we'll move on to significant figures, then we'll go on to errors, and finally कुछ questions and solutions देखेंगे. This is one of the easier chapters rather in your entire syllabus of physics. So I suggest थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें से आपको कुछ easy marks आ सकते हैं. Okay, let's look at this image of the balloon. कोई भी ऑब्जेक्ट देखने से कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे हाउ बिग इज इट, हाउ हेवी कैन इट बी, हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स, कलर्स, ऐसा सवाल आ सकते हैं. सो दीज क्वेश्चंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन सेक्शंस, फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज. ये कलर वाला सवाल विल गो इनटू नॉन फिजिकल क्वांटिटी, whereas this हाउ बिग इज इट, साइज, वेट, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं. हमारा फोकस मेनली फिजिकल क्वांटिटीज पे रहेगा. तो फिजिकल क्वांटिटीज फर्दर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. अब ये आइडिया कहाँ से आता है? विल डिस्कस दिस इन डिटेल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट यहाँ पे थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं. यहाँ पे आपको ये 7 क्वांटिटीज दिखेंगे: लेंथ, मास, टाइम, luminous intensity, temperature and amount of substance. बीच वाले का बात I'll tell you later. Yes, these 6 are the basic fundamental quantities. These are like the building blocks. इसी से we'll get derived quantities. Any quantity apart from these 6 quantities are derived quantities, and there'll be a combination of at least one of these or two of these. जैसे यहाँ पे देखिए, velocity comes from length and time. Length divided by time, dimension wise, would give you velocity. Similarly, velocity के साथ mass लेने से momentum आता है. We'll discuss इसका in depth physics will discuss later on. सब कुछ हमारे syllabus में ही है. अभी के लिए इस idea, basic idea. So these 6 have been chosen to be the basic fundamental blocks. ये बीच वाला दिख रहा है, this is angle or solid angle. This is the 7th fundamental quantity which does not depend on any other quantities. Generally इसको अलग से पकड़ते हैं, मतलब इसको ना fundamental ना derived कुछ भी नहीं assume किया जाता, but this is kind of a fundamental quantity. It's independent. We'll talk about this in details in the next chapter. अभी के लिए बस basic idea ले लेते हैं. Okay. अब we'll move on to significant figures. Any measured quantity, उसमें जो absolute certain digits plus the first uncertain digit रहता है, that gives you the number of significant figures. Definition ठीक है, याद कर सकते हैं, बट ज़्यादा फायदा नहीं है, समझना ज़्यादा important है. कुछ rules हैं, we'll go through the rules first. All non-zero digits are significant. इसका मतलब है कोई भी आप नंबर लेंगे ऐसे 36.54 और कुछ भी 27.815, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स आएंगे उनका सम लेंगे, तो नॉट डिजिट का सम, नंबर ऑफ डिजिट्स विल गिव यू द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ दैट नंबर. जैसे इसमें 4 है टोटल, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. ये सबसे बेसिक, सबसे इजी वाला है, सिंपल है. zeros appearing between two non-zero digits are significant. Let's say इसका 5.8002. Since zeros are appearing between two non-zero digits 8 and 2, ये भी यहाँ पे significant count होगा. So total 5 significant figures है इसमें.
ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट, जैसे ये वाला 3.600, इसमें 4 है। अब ये सवाल आपके दिमाग में आएगा कि 3.600, आई कैन राइट एनी नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर दिस, सो हाउ कैन दीज टू बी सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली आपका एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट से। आप क्या डिवाइस यूज कर रहे हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं टू मेजर दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी, उससे आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आता है। सो एक मीटर स्केल से यू कैन नॉट मेजर 3.600, अगर इसके बाद एक 1 भी आता दैट यू कैन नॉट मेजर, राइट? सो 3.600 and 3.60 are not the same. यहाँ पे मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है compared to this, because this last digit is anyways uncertain. हमेशा कोई भी मेजरमेंट में जो लास्ट डिजिट आएगा वो हमेशा अनसर्टेन रहता है। आइडिया ऐसा रहता है कि अगर कुछ एरर है भी तो वो लास्ट डिजिट में होगा। यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक इन दिस 3.6 में, ये 6 की जगह 5 नहीं हो सकता, बट 3.600 में ये लास्ट जीरो की जगह 1 या 2 हो सकता है, या ये 3.599 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट एरर कभी भी 3 या 6 में नहीं आएगा, ये लास्ट डिजिट में हमेशा आएगा, या यहाँ 0 में नहीं आएगा, लास्ट डिजिट में आएगा। सो 3.600 ये लास्ट 2 जीरो भी काउंट होगा, so this has 4 significant figures. The powers of 10 are not counted as significant figures. ये नंबर देखिएगा, यहाँ पे 10 to the power -5 है, बट मेजरमेंट इस पे हुआ है 2.31, तो 3 ही है, ये 10 to the power -5 मैटर नहीं करता। For values less than 1, the zeros on the left are insignificant. ये नंबर देखिए 0.00031, इसमें ये 4 zeros won't be counted, only 3 and 1, so 2 significant figures है। Change in units don't affect the significant figure in the number. ये क्वांटिटी देखिए 6.2 kgs, this can be written as 6.2 × 10⁻³ grams or 6200 grams, but ये लास्ट दोनों जीरो काउंट नहीं होगा। If you're changing the units, छोटा करे बड़ा करे कुछ भी लिखे, केजी से टन्स भी जा सकते हैं, बट तब भी सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेगा। Trailing zeros in whole numbers don't count as significant figures. This quantity 215000 has 3 significant figures. अब आपको लगेगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये एक होल नंबर है एंड मेजरमेंट एक्यूरेसी का बात यहाँ पे टू दिस ये एक्सटेंट पे नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे अलग बात है, ये डेसिमल प्लेस करना ये अलग है। यहाँ पे ओनली नॉन जीरो फिगर्स विल बी काउंटेड होल नंबर्स में। एग्जैक्ट नंबर्स और मेजरमेंट्स हैव इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आइडिया ऐसा है कि कोई भी जो एग्जैक्ट नंबर है जैसे पाई, और लेट्स से कहीं कोई स्टेटमेंट में लिखा है कि 5 eggs 2 baskets, तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि 2 ही बास्केट है या 5 ही एग है। एग्जैक्ट नंबर यू नो, तो उसमें इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा। ओके चलिए, ये जो रूल्स है ये हम लोग अभी अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं। फर्स्ट 9.001, तो जीरोस बीच में आ रहे हैं ना, सो टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। 0.002 नेक्स्ट वाले में सब जीरोस प्रिवेलिंग जीरोस हैं, सो इसमें ये जीरोस won't add to the accuracy of the measurement, so ये insignificant है, only 2 is significant, so 1। 81000, अब होल नंबर में कैच एक्चुअली, होल नंबर के एंड में अगर डेसिमल प्लेस है एंड उसके बाद एक जीरो है, इन दैट केस ये तीनों जीरो एंड दैट जीरो एट द एंड ऑफ द डेसिमल प्लेस
counts as significant if you're writing it with a decimal place. Otherwise, these zeros don't add on to the precision of the number. So 8 and 1 are only significant. These three zeros are not. थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर जेई में ऐसा कोई क्वेश्चन आया जिसमें डेसिमल प्लेस नहीं है, इट हैज बीन गिवन एज अ होल नंबर ओनली, 81000 या कोई भी 6235000 whatever number of zeros are there, those zeros won't be counted as long as there is no decimal place mentioned in the number. ये सेम नंबर आपको लगेगा इट्स सेम ना, इट लुक्स एज इफ इट्स द सेम 81000 या 81000.0, वो 0.0 आते ही एक प्रिसिशन मार्क आ जाता है कि दिस मेजरमेंट कैन बी डन अप टू फर्स्ट डेसिमल प्लेस. इन दैट केस देयर विल बी 4 एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंट फिगर, इसीलिए इसमें एटलीस्ट 2, तुम्हारा आपका आंसर होगा 2 अभी के लिए, बट टेक्निकली इट्स एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस. तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें होल नंबर है एंड एट द एंड बस कुछ नंबर ऑफ जीरोस है विदाउट डेसिमल प्लेस, यू कैन नॉट काउंट द ट्रेलिंग जीरोस. ट्रेलिंग जीरो के बाद अगर कोई भी डॉट आया, उसके बाद एक जीरो आया, डेसिमल प्लेस आया, तो ये जीरोस काउंट होंगे. ओके, नेक्स्ट वाला 6.40 इंटू 10 टू द पावर 4. सिंस ये 10 का पावर काउंट नहीं होगा तो 6.40 ही काउंट होगा, 3 है इसमें. ओके, अब विल लुक इनटू अलजेब्रिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. इसमें भी बहुत सिंपल लॉजिक है. कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन में लेट्स लुक इनटू एडिशन सब्ट्रैक्शन फर्स्ट. जो नंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे उनका जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, जैसे इन तीनों में 1 डेसिमल प्लेस सबसे कम है, लीस्ट है, दैट विल बी काउंटेड ओनली. सो आपका आंसर में भी एक ही डीपी आएगा, कैन नॉट बी 3 और 2 और 4 व्हाटएवर, नहीं आ सकता. सो 1.3 का सिंस ओनली सिंगल डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में भी आपको 6.7 तक ही लिख सकते हैं. योर आंसर कैन नॉट एक्सीड द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, बिकॉज बहुत सिंपल लॉजिक है. 1.3 के बाद कुछ भी आ सकता था, वी डोंट नो, इट कुड बी 1.311 1.324 व्हाटएवर. इसमें मेजरमेंट एक्यूरेसी का क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए आपका आंसर है 6.7 ओनली. उसके बाद जो भी है वो अनसर्टेन है, कंप्लीटली अनसर्टेन है, इट्स अननोन टू अस. सब्ट्रैक्शन में देखिए सेम लॉजिक अप्लाई होता है. 10.1 यहाँ 10.45, सो आपका आंसर में एक ही डेसिमल प्लेस रह सकता है, इसीलिए 0.35 नहीं 0.4 है. आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट्स 0.4. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में थोड़ा डिफरेंट लॉजिक है. इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स काउंट होते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए 2 ही एसएफ है, यहाँ पे 4 एसएफ है, तो आपका आंसर शुड बी इन 2 एसएफ ओनली, इसीलिए इसको राउंड ऑफ करके 30 कर दिया है. डिवीजन में यहाँ पे इन नंबर में 3 एसएफ है, यहाँ पे 4 एसएफ है, सो आंसर आपका 3 एसएफ में ही आएगा. ओके, विल मूव ऑन टू एरर. कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उसका मेजरिंग एक्यूरेसी का एक लिमिटेशन रहेगा, जो उसका लीस्ट काउंट है कि सबसे छोटा जो वो काउंट कर सकता है, मेजर कर सकता है, दैट इज हिज लीस्ट काउंट, बहुत सिंपल टर्म्स में. उसके बाद आप चाहे भी यू कैन नॉट कम डाउन टू द नेक्स्ट पावर ऑफ 10. मतलब लेट्स से अगर आपको मिलीमीटर तक मेजरमेंट अलाउड है, तो आप 0.1 mm तक नहीं आ सकते या 0.01 mm तक नहीं आ सकते विद दैट इंस्ट्रूमेंट. वी हैव टू ब्रिंग अ इंस्ट्रूमेंट विद मोर मेजरिंग एक्यूरेसी. तो लुक एट दिस क्वांटिटी. इस क्वांटिटी में दिस इज योर एरर ±1. सो आपका इंस्ट्रूमेंट could have measured up to an accuracy of ±1 kg. So आपका ये जो फाइनल फिगर है 5, दिस कैन बी 6 और 4 और 5, वी डोंट नो, ये अनसर्टेन है. 2 is your certain figure, 5 is not. तो this is your error. In this case इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट 1 kg है.
आपका मैंने जैसे बताया मेजरमेंट कुड बी एनीथिंग बिटवीन 24 to 26 kgs. दिस इज योर परमिसिबल एरर. अब एरर्स का टाइप्स देखते हैं. रैंडम एरर. दिस इज impossible to remove completely. This can take place while you're taking your readings. Since it's random, magnitude can vary. बहुत reasons आ सकते हैं ये आपके measurement में आने का. जनरली सेम मेजरमेंट को आप अगर बार बार लेंगे नंबर ऑफ टाइम्स n नंबर ऑफ टाइम्स लेंगे एंड उसका एवरेज निकालेंगे तो दिस एरर कैन बी रिड्यूस्ड. इट कैन नॉट बी कंप्लीटली टेकन आउट. इट्स इम्पॉसिबल टेक आउट रैंडम एरर कंप्लीटली, बट सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप अगर बार बार मेजर करेंगे इन दैट केस सिंस यू आर डूइंग इट नंबर ऑफ टाइम्स यू आर रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, आपका एरर विल स्लोली प्लस माइनस कम डाउन होगा. कुछ कुछ टाइम्स आपका एरर कम होगा, कभी कभी ज्यादा होगा. सो आपका एवरेज में आपका एरर कम रहेगा. एब्सोल्यूट एरर ये आपका डिफरेंस है मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी का डिफरेंस है एब्सोल्यूट एरर. सिंस द एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू इज नॉट नोन, हम लोग क्या करते हैं वो जो प्रीवियस टाइम में हम लोग मीन वैल्यू देखे ना अभी, वो मीन वैल्यू को हम लोग अज्यूम करते हैं कि वही ट्रू वैल्यू है. सो फॉर एवरी मेजरमेंट यू हैव टेकन एक एब्सोल्यूट एरर आएगा हर एक मेजरमेंट के लिए. तो वो ऐसे निकालते हैं डेल्टा ए आई इक्वल टू ए एम, ये मीन है आपका, माइनस ए आई वो रीडिंग है. तो हर रीडिंग के लिए आपको एक डेल्टा ए आई आएगा, एब्सोल्यूट एरर फॉर दैट रीडिंग आएगा. अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ये जो एरर्स आ रहा है हर एक रीडिंग के लिए उसका मीन होता है मीन एब्सोल्यूट एरर. डेल्टा ए मीन लिखेंगे हम अभी. जो आपका फाइनल मेजरमेंट डेटा है उसको यू कैन रिप्रेजेंट एज ए एम, आपका जो मीन वैल्यू है जिसको हम लोग ट्रू वैल्यू भी पकड़ रहे हैं, प्लस माइनस डेल्टा ए मीन जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है हर एक रीडिंग में उसका जो मीन है उसको प्लस माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं. ओके. रिलेटिव एरर क्या होता है, आपको जो डेल्टा ए मीन आया बाई द ट्रू वैल्यू रादर द मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, उसको रिलेटिव एरर बोलते हैं. इसको आप परसेंटेज में लिख सकते हैं इनटू 100 करके. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं तो समझ आएगा. लेट्स से कोई एक क्वांटिटी को मेजर किया गया है 4 बार एंड पहला बार आया 1.11 सेंटीमीटर्स, नेक्स्ट टाइम 1.12 सेंटीमीटर्स, फिर से आया 1.1 सेंटीमीटर्स, फाइनली 1.09 सेंटीमीटर्स. ये 4 बार मेजर किया, रिपीट किया है सेम एक्सपेरिमेंट को, उसको मेजर किया है कोई क्वांटिटी को. अब इसका मीन क्या होगा, बहुत सिंपल है. इसका जो एवरेज है मीन है वो निकाला है. तो ये मीन के बेसिस पे फॉर ईच रीडिंग यू कैन फाइंड आउट द एरर्स, सॉरी जो एरर्स है वो आप निकाल सकते हैं. अब ये जो आपका एब्सोल्यूट एरर्स है इसका मीन एब्सोल्यूट एरर भी आप निकाल सकते हैं जो 0.01 आया है. तो ये आ गया तो बेसिकली आपका रीडिंग होगा 1.01, ये है आपका मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन. बहुत सिंपल है, ये आपका काम आएगा. इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं बट ये काफी सिंपल है. सो इसमें आपको इजी मार्क्स आ जाएंगे इससे क्वेश्चन आया अभी तो. ओके, अब एरर्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं. डेरिवेशन आपको बुक्स में मिल जाएगा, सो आई वोंट गो इनटू डिटेल्स. काफी सिंपल है. लेट्स से आपके पास दो नंबर है a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b. अगर आपको ये दोनों नंबर को ऐड करना है या डिफरेंस निकालना है तो वो कैसे लिखेगा, x वुड बी a प्लस माइनस b, डिपेंडिंग आप ऐड कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. वाइल आपका जो आंसर है उसमें एरर आएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b. ये काफी सिंपल है. दिस इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा x. प्रोडक्ट या डिविजन में कैसे आएगा, वो ऐसे रेशियो फॉर्म में आएगा. वो कैसे रहेगा, डेल्टा x वुड बी
प्लस माइनस x इंटू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। अब x वुड बी a इंटू बी और a बाई b, कोई भी हो सकता है। प्रोडक्ट के लिए ऐसा आएगा, आपका x ऐसा आएगा और डिवीजन के लिए ऐसा रहेगा। ये पोर्शन, एंटायर पोर्शन आपका एरर है, ए बी इंटू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अगर कोई क्वांटिटी को कुछ पावर में रेज किया जाए तो ऐसे रहेगा आपका फाइनल आंसर। सेम ये जो आपका क्वांटिटी आया ना, दैट इनटू दैट पावर n इंटू डेल्टा ए बाई ए एंड m इंटू डेल्टा b बाई b, ये आपका एरर टर्म है। डेल्टा x बाई एक्स, इनफैक्ट फिर से x यहाँ पे आ जाएगा। आपका x क्या था, यहाँ पे x है a टू द पावर n इंटू b टू द पावर m, तो वो यहाँ पे सामने रहेगा। आपका पूरा एरर होगा a टू द पावर n इंटू b टू द पावर m इंटू ये टर्म। देखते हैं, the error in measurement of a radius of sphere is 3%. Evaluate the error in measurement of surface area and volume. अब रेडियस मेजरमेंट में आपका एरर आ रहा है 3%, so that can be written as 0.03. अब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला सबको पता है। वॉल्यूम है v इक्वल टू पाई आर क्यूब, यहाँ पाई इज कांस्टेंट, सो उसको लेके कोई टेंशन नहीं है। तो आपका डेल्टा v वुड बी 3 इंटू डेल्टा आर। अभी हम लोग देखें ना कि अगर आपका एक क्वांटिटी इज रेज्ड टू सम पावर, देन उनका एरर निकालते वक्त व्हाइल कैलकुलेटिंग डेल्टा v, ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा आर। सो यहाँ पे 3% है तो एरर यहाँ पे 9% हो जाएगा बेसिकली। सिमिलरली सरफेस एरिया में यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू डेल्टा आर हो जाएगा, तो 6%, तो हो गया आपका 9% एंड 6%। 50 balls are kept inside a bag. If each ball weighs 0.8 kg, the weight of the bag should be। अब यहाँ पे बैग का वेट नेग्लिजिबल लिया गया है। अब यहाँ पे हमारा बेसिक ऑपरेशन है, ये 50 बॉल्स इंटू 0.84 kg मल्टीप्लाई करना है। अब 50 है बट ये 50 बॉल्स स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स है इन्फिनिट, सॉरी। और यहाँ पे 0.84 kgs बोला है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है, प्रिवेलिंग जीरोस काउंट नहीं होता। सो आपका आंसर शुड बी इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 42 kgs आएगा। ओके, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वो घर में प्रैक्टिस कीजिए। एंड कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए, हम लोग आपको जरूर हेल्प करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। विल ऐड मोर वीडियोस इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू।